वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं असाइनमेंट नंबर जो 20 है आपका, उसका वीडियो सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। So we know that this is F, and F is equal to YA upon L into delta L. So this is the force, and so from this equation we can say that delta L is inversely proportional to area, and because F and Y are constant, F and Y मतलब Young's modulus are constant. तो अगर एफ एंड वाई कांस्टेंट है तो वी कैन राइट दिस इज डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. So this is equal to inversely proportional to L upon area is equal to pi by 4 d square. So pi by 4 is constant, so this is d square. So delta L1 is directly proportional to 100. अगर फर्स्ट पार्ट में आंसर में हम देखो सारे ऑप्शन से चलने पड़ेंगे आपको. फर्स्ट में देखें तो लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, सो दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज 100. नाउ अगर डेल्टा L2 की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, दिस इज 200 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर. सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 50 हो जाएगा. डेल्टा L3 की बात करें सो दिस इज इक्वल टू 300 अपॉन दिस इज 3 का स्क्वायर. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, दिस इज 100 अपॉन 3. सो दिस इज डेल्टा L4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज 50 डिवाइडेड बाई 0.5 का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 200. सो अगर हम देखें तो डी पार्ट में जो एल अपॉन डी स्क्वायर है उसकी वैल्यू मैक्सिमम है. इसका मतलब सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन आपको किस में हुआ है, डी पार्ट में है. तो डी पार्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इफ द रेशियो ऑफ डायमीटर्स लेंथ एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ steel and copper wires shown in the figure are P, Q and R respectively, then the corresponding ratio of increase in their length would be. So अगर आप देखें यहाँ पे, so again we know that this is delta L, and delta L is equal to this is equal to F L upon A into Y. So this is equal to 4 F L divided by pi d square into Y. So delta L for a steel divided by delta L for copper is equal to this is equal to Fs upon Fc into this is dc upon ds का whole square, and into this is yc upon ys. So into this is ls upon lc. So after putting all these values we can write this is 7 by 5 into this is 1 upon p का whole square into 1 upon s into q. So this is equal to जो given value है सब value put कर दिया. So this is 7q. So this is 7q upon 5s into p square. This is the correct answer. Now question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज 4 इंटू 10⁻⁵ पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर अंडर ए प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर विल बी. सो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है यहाँ पे दिस इज के एंड दिस इज के इज इक्वल टू 1 अपॉन बी. सो दिस इज डेल्टा वी अपॉन पी, where P is equal to this is 100 कितना हो गया, this is atm, and K is equal to this is 4 into 10⁻⁵, and V is equal to this is 100, this is centimeter cube. So delta V and delta V is equal to 0.4, this is centimeter cube, and this is the correct answer. Now question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 को देखें the two wires A and B are of the same material, their lengths are in the ratio of 1:2 and the diameter are in the ratio 2:1. If they are pulled by the same force, then increase in length will be in the ratio. So this is equal to we know that again this is Young's modulus
and Young's modulus is equal to this is F upon this is pi r a square into this is L upon a small l, या डेल्टा एल लिख सकते हैं इसको आप. So this is equal to since y and f are same for both the wire, so we have L is directly proportional to L and inversely proportional to R square. So this is L1 upon L2 and this is equal to R2 square into L1 divided by R1 square into L2. So this is equal to D2 upon 2 का whole square into L1 divided by D1 upon 2 का whole square into L2. Now so this is L1 upon L2 and this is equal to L1 upon L2 is equal to D2 square into L1 divided by D1 square into L2. So this is equal to D1 square upon D2 square upon, so this is 2D2 square into L2 upon this is 2L2. So this is equal to, अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो सॉल्व करने के बाद this is L1 upon L2 and this is equal to 1 upon 8 is the correct answer. Now next question. Now next question is, when 1 kg of ice at 0 degree Celsius melts to water at 0 degree Celsius, the resulting change in its entropy taking latent heat of ice to be 80 calorie per degree Celsius. So now this is हालांकि जो एंट्रोपी है, अगर हम एंट्रोपी की यहाँ पे बात करें, जैसे ये क्वेश्चन एंट्रोपी से रिलेटेड है, तो एंट्रोपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत कम रेयर ही आते हैं, बट यहाँ पे आए हैं. वी नो दैट चेंजिंग एंट्रोपी एंड चेंजिंग एंट्रोपी इट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू हीट सप्लाइड अपॉन क्यू, मतलब हीट अपॉन टोटल टाइम टेम्परेचर होता है. सो दिस इज डेल्टा एस एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू दिस इज डेल्टा क्यू अपॉन टी. So this is equal to delta S is and delta, what is delta Q? So this is m into LF, मतलब latent heat. So this is undivided by 273. So this is delta S is equal to कितना हो जाएगा? So this is 1000 into 80 and divided by 273. So after calculating this, so this is 293. This is calorie per Kelvin. This is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिवर्सिबल. इसमें कौन सा प्रोसेस जो है रिवर्सिबल है? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ ए नाइक्रोम वायर. सो अगर हम देखें तो 6 जो है रिवर्सिबल जो है आइसोथर्मल कंप्रेशन. आइसोथर्मल जो कंप्रेशन है ये आपका रिवर्सिबल है, ठीक है. बाकी ये सब जो है वो रिवर्सिबल नहीं है. तो पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल. सो सी पार्ट आइसोथर्मल कंप्रेशन इज रिवर्सिबल. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में देखें ए कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी इज इक्वल टू 50%, मतलब 0.5 व्हेन इट इज सोर्स एट टेम्परेचर ऑफ, सोर्स का टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 327 डिग्री सेल्सियस. सो अगर कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 327 एंड प्लस 273, सो 3 + 2 5 एंड दिस इज 100, सो दिस इज 600 कैल्विन. द टेम्परेचर ऑफ सिंक, आपसे टेम्परेचर ऑफ सिंक पूछा है एंड वी नो दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस दिस इज T2 अपॉन T1. सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.5, so this is 1 minus T2. T2 is the sink temperature and T1 is the source temperature. So this is T2 upon 600 is equal to 1 minus 0.5. So this is 0.5. So this is T2 upon 600 is equal to 0.5. So T2 is equal to this is 600 into 0.5. So this is equal to 300 Kelvin is the correct answer. तो यहाँ पे आपका डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो 300 कैल्विन. तो अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 300 माइनस 273, सो दिस इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now next question is question number 8. The efficiency of a Carnot engine operating between the temperature of 100 degrees Celsius and minus 27 degrees Celsius will be. So we know that efficiency is equal to, this is equal to 1 minus this is T2 upon T1. So T2 is equal to, this is equal to minus 23 degrees Celsius. So this is equal to minus 23 and plus this is 273. So this is 250 Kelvin. And what is T2 and what is T1? So T1 is equal to, this is 100 degrees Celsius, this is 373 Kelvin.
So efficiency and efficiency is equal to 1 minus this is T2 upon T1. So this is 250 upon 373. So efficiency अगर हम देखें यहाँ से तो efficiency is equal to this is 373 minus 250 upon 373. तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ये तो इसी के टर्म में आंसर गिवन है. सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि an ideal Carnot engine whose efficiency is 40% receives heat at 500 Kelvin. Efficiency is equal to 40%. 40% मतलब 0.4. Receive heats at 500 Kelvin. मतलब T1 and T1 is equal to कितना? This is 500 Kelvin. If its efficiency is 50%, बोला कि तो this is N1. So N2 is equal to this is 0.5. Then the intake temperature for the same exhaust temperature. मतलब कि जो आपका सोर्स है वो T2 ही है, तो बताया कि ये जो आपका फाइनल टेम्परेचर जब इफिशियंसी 0.5 हो जाएगा तो इंटेक टेम्परेचर कितना हो जाएगा. तो देखो, सो इफिशियंसी इज इक्वल टू, वी नो दैट इफिशियंसी इज इक्वल टू दिस इज 1 माइनस दिस इज T2 अपॉन T1. तो हमें पहले सोर्स सिंक का टेम्परेचर निकालना पड़ेगा. सो दिस इज इक्वल टू 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस दिस इज T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू दिस इज 500. So T2 upon 500 is equal to 1 minus 0.4. So this is equal to T2 upon 500 is equal to 0.6. So T2 is equal to this is equal to 300 Kelvin. So ये जो टेम्परेचर निकला किसका निकला? सिंक का. So now again efficiency is equal to 1 minus so सिंक का टेम्परेचर T2 and higher temperature this is T3. So अब efficiency कितनी है? 0.5. So this is 1 minus T2 is equal to 300 upon this is T3. So this is 300 upon T3 is equal to 1 minus 0.5. So this is 0.5. So this is T3 and T3 is equal to this is 300 upon 0.5. So this is equal to 300 into 10 upon 5. So the 2. So this is equal to 600 Kelvin and 600 Kelvin is the correct answer. So 600 Kelvin is the correct answer. Now next question. Now next question is the degree of freedom of a molecule of a triatomic gas is. तो जो ट्राइएटॉमिक गैस होता है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं वो कितने होते हैं? आपके 6 होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाइएटॉमिक, तो डाइएटॉमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 5 होते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं डाइएटॉमिक, हाँ, तो डाइएटॉमिक जो होता है डाइएटॉमिक जो होता है उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है डाइएटॉमिक के लिए, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है 5 होता है. और अगर आप देखो ट्राइएटॉमिक में बात करें तो ट्राइएटॉमिक की अगर हम बात करते हैं तो ट्राइएटॉमिक में जैसे कि इस तरह से अगर आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 एटम ऐसे हैं ट्राइएटॉमिक में, तो इस तरह से 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल, तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. लेकिन अगर यही इस तरह से होता, ठीक है, अगर यही इस तरह से होता, ठीक है, तब यहाँ पे आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है यहाँ पे, ठीक है, तो देखो ये जो है आपका यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं. अगर हम ट्राइएटॉमिक की बात करें तो ट्राइएटॉमिक में 2 केसेस बनते हैं, एक बनते हैं लीनियर और एक बनते हैं नॉन लीनियर. तो अगर नॉन लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल, ठीक है. सो टोटल, तो अगर लीनियर है तो लीनियर के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 7 होता है. तो अब इसमें एक्यूरेट में 6 ही लगाएंगे हम, ठीक है. इसके बाद है इफ फॉर ए गैस R अपॉन CV इज इक्वल टू 0.67 द गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर, किससे बना हुआ है गैस? अगर R अपॉन CV इज इक्वल टू 0.67 है तो यहाँ से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 12 को, तो CV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 3/2 कितना हो जाएगा? R, और 3/2R किस में होता है? मोनोटॉमिक गैस में होता है. सो ये मोनोटॉमिक इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट इज फॉर हाइड्रोजन गैस CP माइनस CV इज इक्वल टू A, फॉर ऑक्सीजन CP माइनस CV इज इक्वल टू B. सो द रिलेशन बिटवीन A एंड B इज, सो अगर देखो CP और CV अगर स्पेसिफिक हीट के टर्म में है, ठीक है, अगर CP CV अगर स्पेसिफिक हीट के टर्म में है तो स्पेसिफिक हीट के टर्म में जो होता है इक्वल टू गैस कांस्टेंट पर मोलर मास आता है, ठीक है. लेकिन दोनों का है इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन CP माइनस CV इज इक्वल टू A एंड फॉर ऑक्सीजन CP माइनस CV इज इक्वल टू B. सो अगर हम यहाँ पे देखें
तो हम कह सकते हैं कि सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर होता है बेटा गैस कांस्टेंट। सो ए हो या बी हो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 14 फॉर ए सर्टेन गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय टू बी 1.5 फॉर दिस गैस। तो अगर 1.5 है तो 1.5 किसके लिए होता है। सो 1.5 की अगर हम बात करें तो गामा इजकल टू क्वेश्चन नंबर 14 में गामा इजकल टू दिस इज 1.5 है। तो गामा इजकल टू अगर 1.5 है, सर्टेन गैस रेशियो पर स्पेसिफिक हीट इज गिवन टू बी 1.5 फॉर दिस गैस, सी बी की वैल्यू आपसे पूछा है। सो अगर यहाँ पे हम लिखें तो गामा एंड गामा इजकल टू दिस इज 1.5 का मतलब 15/10। सो दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन कितना 2। सो सी बी इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 एंड गामा इजकल टू सी पी अपॉन सी बी। सो दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू कितना हो जाएगा सी पी हो जाएगा, सी बी इजकल टू एंड वी नो दैट दिस इज सी पी माइनस सी बी इजकल टू कितना होता है आर होता है। सो सी पी इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इजकल टू सी पी इजकल टू दिस इज सी पी या तो सी पी माइनस सी बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, सी पी माइनस आप लिख सकते हैं दिस इज सी पी और माइनस सी बी इजकल टू 3/2 2/3 एंड दिस इज सी पी एंड दिस इजकल टू कितना हो जाएगा आर। सो अगर इसको सॉल्व करोगे तो सी पी इजकल टू कितना आ जाएगा, दिस इजकल टू 3R यहाँ पे आ जाएगा सी पी इजकल टू। सो सी पी इजकल टू दिस इज 3R इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट।